इन सब वाणियों को अलग अलग समय में हम सबको दिए हुए हैं। जीवन में इसको यदि हम लोग चरित्र में उतारते हैं तो निश्चित ही लाभवान होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपके सुस्वास्थ्य मंगल के लिए परम दयाल के रातुल चरण में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आप इसी तरह से हम सबके बीच में बने रहें दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय। अभी हम लोग चलते हैं बंगाल की पावन भूमि दुर्गापुर। वहां से श्री स्वपन अधिकारी दा को आमंत्रित करते हैं कि दादा आए और एक भजन पुष्प अर्पित करें। जय गुरु। दादा जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुरेर चरणे प्रणाम जानिए এবং অনলাইনে উপস্থিত প্রত্যেককে রানিত জয়গুরু জানিয়ে আমি ঠাকুর শ্রী ঠাকুরের একটি ভজন গাওয়ার চেষ্টা করছি। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे बिन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे बिन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता। मेरे ठाकुर जी परम दातार सबके जीवन आधार। प्रभु थम पतवर हसी नैया मजदार, प्रभु थम पतवर हसी नैया मजदार, शरण तेरे चरण उद्धार। प्रभु थम पतवर हसी नैया मजदार, शरण तेरे करम उद्धार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। धन जौवन मिट जाए एक नामी सहाय, धन जौवन मिट जाए एक नामी सहाय, परमनाथ सबके रखवार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता। मेरे ठाकुर जी परम दातार सबके जीवन आधार। परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, दयाल सबके पालक के पालनहार। दयाल सबके पालनहार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता। मेरे ठाकुर जी परम दातार सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता।
मेरे ठाकुर जी परम दाता सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता सबके जीवन आधार। जय गुरु। গুরু দাদা, জয় গুরু। খুব ভালো গান করেছেন দাদা, এত সুন্দর ভালো গান আপনি পরিবেশন করলেন, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছিলাম আমরা সবাই। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য মঙ্গলের জন্য পরম দয়াল ঠাকুরের আতুল চরণে একান্ত প্রার্থনা জানাই, আপনি সুস্থ থাকেন, ভালো থাকবেন। जय गुरु, यही आशा करी। जय गुरु, जय। और हम सभी नेक्स्ट भजन ले लेते हैं दुर्गापुर की पावन धरती से ही श्रीमती मीता रानी बैकर माँ से। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। खूब ভালো আওয়াজ আসছে, আপনি শুরু করুন। জয় গুরু। শ্রী ঠাকুরের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। অনলাইনে উপস্থিত প্রত্যেককে আমার আনন্দিত জয় গুরু। আমি কি বোরানির মা সঙ্গীত পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। আমারে প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো। আমারে প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো। মানুষ হয়ে লোক সমাজে, মানুষ হয়ে লোক সমাজে করেন লীলা অবিরত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো। চলনটি তার বড়ই তো সুন্দর, ছন্দে তারি জাগে প্রাণে ভালোবাসার ঝড়। ও তার অবাধে চলার ছন্দ মনোহর। চলনটি তার বড়ই তো সুন্দর, ছন্দে তারি জাগে প্রাণে ভালোবাসার ঝড়। ও তারে অবাধে চলার ছন্দ মনোহর। ও তারে চলনে বলনে মোহনে রূপে ভক্ত সেবক শত নিত্য তারি পথের ধুলাই করেছে মাথা নত। ও তারে চলনে বলনে মোহনে রূপে ভক্ত সেবক শত নিত্য তারি পথের ধুলাই করেছে মাথা নত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো। ওই জাগে তার অরুণ আখি, তারার মাঝে আলোর নাচন। সকলে কথায় প্রেমের মাতন। ওই জাগে তার অরুণ আখি, তারার মাঝে আলোর নাচন। সকলে কথায় প্রেমের মাতন। প্রাণে কারা তার সেবা যতন প্রীতির সাধন। তারে মুখর চন্দন ও তার আলোক লীলা যত
হিয়াই জাগায় স্বস্তি শান্তি মুক্তি অবিরত তারে অলোক লীলা যত হিয়াই জাগায় স্বস্তি শান্তি মুক্তি অবিরত আমার প্রাণের মানুষ যে লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো। নেয় সে কেড়ে হৃদয় তারে প্রাণের পরশ দিয়ে ধন্য করে নামাজ প্রীতির সুধা ছড়িয়ে আর সেবার সুযোগ দিয়ে নেয় সে কেড়ে হৃদয় তারে প্রাণের পরশ দিয়ে ধন্য করে নামাজ প্রীতির সুধা ছড়িয়ে আর সেবার সুযোগ দিয়ে ওই নেচে গে আসছে যে ভক্ত সুজন কত গীতার্থতাই ধন্য হবে মরণ হবে নত ওই নেচে গে আসছে যে ভক্ত সুজন কত গীতার্থতাই ধন্য হবে মরণ হবে নত মানুষ হয়ে লোক সমাজে মানুষ হয়ে লোক সমাজে করেন লীলা বিরত আমার প্রাণের মানুষ যে লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো আমার প্রাণের মানুষ যে লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো আমার প্রাণের মানুষ যে লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। অপূর্ব অপূর্ব, এত ভালো হার্ট টাচিং ইষ্টমুখী আপনি ভাব পরিবেশন করলেন গানের মধ্যে, যে কি বলবো, সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছিল। এত সুন্দর গান, মনে হচ্ছিল যে ঠাকুর বাড়িতে ওই নাটমণ্ডপে বসে আমরা শ্রবণ করছি। আর এত ভালোভাবে আপনি গানটা পরিবেশন করলেন, সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছিল। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য মঙ্গলের জন্য দয়াল ঠাকুরের আতুল চরণে একান্ত প্রার্থনা জানাই, আপনি সুস্থ থাকবেন, मंगलेर अधिकारी होবেন। जय गुरु। माने बहुत सुंदर परिवेशन किया और इतना अच्छा मेरे मन के मनुष्य जो हैं, प्रिय प्राण के व्यक्ति जो हैं, उनको हमें पुकारना है। वे ही हम सबके एकमात्र समर्थवान पुरुष हैं जो हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। हमके हमारे भूल त्रुटि को आंख में उंगली डाल करके दिखा सकते हैं पथ को, किस तरह से हमें जीवन में चलना होगा। ये चलन बलन कथन ये सब कुछ नियंत्रित होने से ही हम सभी एक सुंदर मनुष्य के रूप में अग्रसर हो सकते हैं। हम कभी भी अपने आप को कम ना आके परमपिता से युक्त होने के बाद ही हम सभी ये जो हम लोग यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार किए हैं, ये इतना ही करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत भारी लगता है। लेकिन हम जितने भी लोग युक्त हुए हैं, प्रभु के इस आदेश को पालन कर रहे हैं, निखुद भाव से निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं। जो स्वस्थैनी व्रत का पालन कर रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, आप सोचिए पहले के जीवन में हम लोग कैसे रहते थे, अभी हम कैसे रह रहे हैं। तो इतना ये जो परिवर्तन हुआ, ये आशा दिलाता है कि हमारे जीवन में अभी और नया परिवर्तन और होना बाकी है, और इस जीवन में हमने इतना अचीव किया, और इसी को लेकर के नेक्स्ट भावी जीवन हम लोग का और सुंदर और बढ़िया हो सकता है। इसी के साथ मैं अभी भजनांजलि तरफ आगे बढ़, और अंतिम भजन है आज के ऑनलाइन सत्संग का। तो बाबा गोरखनाथ की पावन भूमि गोरखपुर से श्रद्धेय माँ पूनम अग्रवाल माँ को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। माँ आप आइए और एक भजन पुष्प दयाल ठाकुर के रातुल चरण में एकांत प्रार्थना है, अर्पण कीजिए माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। सभी उपस्थित दादा और माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु।
नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। सकल जगत के माया तज कर, सकल जगत के माया तज कर, दास में तेरा सेवक बन कर, दास में तेरा सेवक बन कर, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरे चरण में आया, नाथ मैं तेरे चरण में आया। क्षण भंगुरी काया मेरे, वृत्ति वासना प्रिय सवारी, क्षण भंगुरी काया मेरे, वृत्ति वासना प्रिय सवारी। प्रभु सुन ले तो मेरी पुकार, प्रभु सुन ले तो मेरी पुकार, मरण हरो करो बेड़ा पार। लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरे चरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। सकल जगत के माया तज कर, सकल जगत के माया तज कर, दास में तेरा सेवक बन कर, दास में तेरा सेवक बन कर, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। कोई न मेरा संगी साथी, तुम बिन कौन सुनेगा विनती। कोई न मेरा संगी साथी, तुम बिन कौन सुनेगा विनती। मांगू मैं प्रभु नाम करुदान, मांगू मैं प्रभु नाम करुदान। मालिक मेरे करुणा निधान, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरे चरण में आया, नाथ मैं तेरे चरण में आया। पाप पुण्य में मोक्ष न जानो, शरण केवल तेरा मैं पहचानू। पाप पुण्य में मोक्ष न जानो, शरण केवल तेरा मैं पहचानू। गुण सिंधु तुम सुख अविनाशी, गुण सिंधु तुम सुख अविनाशी। मुख तुम ले अब शांति राशि, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं
तेरे शरण में आया। सकल जगत की माया तज कर, सकल जगत की माया तज कर, दास मैं तेरा सेवक बन कर, दास मैं तेरा सेवक बन कर, सच्चा शंका को भुलाया, सच्चा शंका को भुलाया, नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। जय गुरु दादा, जय गुरु, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। बहुत सुंदर, इतना मतलब भावपूर्ण भजन, इतना सुंदर शब्दों का चयन, दीपाली का इतना सुंदर जो लिखा गया है, शब्द रचना हुआ है और इतना भावपूर्ण है कि क्या कहा जाए। यदि ध्यान पूर्वक सुना जाए तो मन को झकझोर देता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग जो कहते हैं ना कि बैकुंठ में वास करना, तो बैकुंठ में वास करने का मतलब होता है कि कोई कुंठा ही नहीं रहेगा, बिना कुंठा के, बिना हिचक के, बिना हिचकिचाहट के। और इतने मन से आपने गाया, ऐसा लग रहा था हम लोग बैकुंठ में ही वास कर रहे हैं, कोई कुंठा नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई द्विधा नहीं। इतना मन में विश्वास है कि हम अपने परम पिता के पास में बैठे हैं, मैं हूं और मेरे परम पिता है। और ये भाव का परिवेशन कर पाना ये बहुत कठिन कार्य है और आपने इसमें आप समर्थ हो पाई, आपने इसको परिवेशन किया और इस परिवेशन के माध्यम से सबको झकझोर दिया कि किस तरह से परमपिता के भाव को हम सब माथे में लेकर के चलेंगे। और आशा करते हैं आप हम सबके बीच में ऐसे ही बनी रहें प्रेरणा स्वरूप, जिससे हम सभी प्रेरणा पा सकें। तो परम दयाल के रातुल चरणों में आपके सुस्वास्थ्य मंगल के लिए दयाल ठाकुर के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करते हैं, आप इसी तरह से हम सबके बीच में बनी रहें। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। अभी हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए हम चाहेंगे कि हम सबके बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय स्वप्रति ऋत्विक दिल्ली से हम सबके श्रद्धेय वेदवाणी गांगुलीदार दादा को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। दादा आइए और इस चर्चा की तरफ हम सबको लेकर के चलिए। जय गुरु दादा। श्रद्धेय स्वप्रति ऋत्विक वेदवाणी गांगुलीदार। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु अमृत। जय गुरु, जय गुरु। एक्चुअली पिछले 7 दिन से आसाम के बोंगाई गांव बोल के एक जगह है, वहां पे लगातार 7 दिन सुबह का चर्चा में भाग लेना पड़ा। एक उन लोग प्रोग्राम करते हैं लगातार 7 दिन एक ही लोग अलग अलग टॉपिक में बोलेंगे। और ऊपर से दिल्ली में भी थोड़ा अचानक ठंड गिरने से तबीयत थोड़ा बिगड़ गया। फिर भी अमरीशदा कल रात को फोन किया और उनको मैं कभी मना कर ही नहीं सकता। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री वरदा के चरण में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद श्री आचार्य देव के चरण में कोटि कोटि नमन। उपस्थित ठाकुर के पूत पंजधरी कर्मीगण, इष्ट पिपासु दादा और माताएं, छोटी छोटी भाई बहन, यथास्थान में मेरा प्रणाम और आनंदित जय गुरु। तबीयत भी थोड़ा सुस्त नहीं है, फिर भी एक टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करना है, वो है अगर जीवन इष्ट हारा हो, जीवन में अगर इष्ट नहीं है तो फिर क्या होता है हम लोग। तो ठाकुर जी का एक वाणी है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसफर कर दूंगा। और उस वाणी में ठाकुर जी कह रहे हैं कि अर्थ वित्त जो भी रहे
यदि तुम हो इष्टहारा, दुर्योधन और रावण के जैसा सबंश में तुम जाओगे मर। অর্থবিত্ত যাই হোক না, যদি তুমি থাকো ইষ্টহারা, দুর্যোধন আর রাবণের মতো সবংশে তুমি যাবে মারা। मेरे पास कितना भी अर्थ रहे, कितना भी वित्त मतलब विषय संपत्ति रहे, अगर तुम इष्ट के साथ नहीं हो। ठाकुर दोनों आदमी का नाम जो इस वाणी में लिए, दुर्योधन और रावण, आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि दुर्योधन और रावण दोनों ही बहुत सारे संपत्ति के अधिकारी, और रावण तो बहुत ज्ञानी भी थे, बहुत पढ़े लिखे भी थे, शास्त्रज्ञ थे, उसके बावजूद भी सबंश में मारे गए। क्यों? क्योंकि इष्ट को भी ये लोग मानते थे, इष्ट को भी मानते थे। देखिए बात बात को स्पेसिफाई कीजिएगा, इष्ट को भी ये लोग मानते थे, लेकिन इष्ट क्या कहते हैं उस पथ में नहीं चलते। हम सब के अंदर भी ये इष्ट को मानना और उनके बात को पकड़ के अपना जिंदगी में प्रतिफलित करना, इन दोनों में अंतर रह जाता है। आए दिन हम लोग बहुत कहानी सुनते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलना हो गया, चल। क्यों हो जाता है ऐसा? हमें क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन कीजिए परम पिता को कि मैं तुम्हारा संतान हूं, उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो गया? तब आपका अंतर आत्मा झंझोड़ेगा और बोलेगा, क्या तुम मेरे कहने जैसा चले हो? सत्संग में आने से होता क्या है? सत्संग में आने से 3 चीज होता है। आयु का वृद्धि होता है। क्या होता है? आयु का वृद्धि होता है, मन का खुराक मिलता है, और तीसरा पुरुषोत्तम सान्निध्य होता है। तुलसी जी कह रहा है, तुलसी इस जग में 5 रत्न है सार, सत्संग, सदगुरु चरण, शरण, दया, दीन, उपकार। अब ये सब बात कहने के लिए नहीं है। तुलसी इस जग में 5 रत्न है सार, इस जग में 5 रत्न सार है। कुछ रत्न क्या है? सत्संग, सदगुरु शरण, दया, दीन, उपकार। ये आज की बात नहीं है, तब की बात है, रामचंद्र जी के युग, तब तुलसी जी ये बात लिखते हैं। हम लोग इस युग में और थोड़ा कम कर दी। क्या 3 चीज मिलता है ना? आयु का वृद्धि होता है, मन की खुराक मिलता है, और पुरुषोत्तम का संग होता है, सानिध्य मिलता है। फिर क्यों आए दिन हमें बहुत तरह का, जो बात सुनना नहीं चाहिए, जो बात जानना पसंद नहीं करते हैं, वो सब बात सुनना या जानने को क्यों मिलता है? आज इसके साथ ये फलना हो गया, उनके साथ वो एक्सीडेंट हो गया, उनका अकाल मृत्यु हो गया, उनका ये हो गया। ये क्यों है? काल के प्रकोप से तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन विश्वास अगर प्रगाढ़ हो, आप सब सत्यानुसरण पढ़ते हैं, मुझे मालूम है। कभी सत्यानुसरण में आप लोग देखिएगा कि ठाकुर जी 3 विषय के ऊपर सबसे ज्यादा वाणी दिए हैं। एक है भक्ति, एक है निष्ठा, और तीसरा सबसे ज्यादा वाणी है विश्वास के ऊपर। ये हम सबके पास भी है, लेकिन ये जितने भी चीज है, ये आत्मसमर्पण की भाव से नहीं है। अगर आत्मसमर्पण की भाव से हो ना,
क्या आत्मसमर्पण? आत्मसमर्पण चीज है क्या? क्या मैंने आपको सौंप दिया? जैसे एक हस्बैंड, एक बीवी, लड़की शादी होके हस्बैंड के घर आते हैं, वो अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं। वहीं पे 16-17 साल कहीं रहने के बावजूद भी सोचने वाली बात है, सोचिएगा कभी भी दिल से, एकदम ठंडे दिमाग से। 17-18 साल एक जगह बड़ा होने के बाद अचानक उसके मम्मी पापा उसका शादी तय कर देता है, वो शादी करके ससुराल आ जाती है, उसके बाद से वो जिंदगी भर उस घर में रहते हैं। इसमें बहुत सारे बात आते हैं, कई बार बनते नहीं है, कई बार झगड़ा होता है, कई बार टूट के कंगार पे चले जाता है, कई बार ऐसा होता है कि इनके जैसा स्वामी स्त्री, इनके जैसा कपल है भी नहीं, और ये कितने भी होते रहे फिर भी उसी घर में रहना। लेकिन ये रहना और उदाहरण सृष्टि करना कि इनके जैसे कपल है ही नहीं, दोनों में अंतर है, इनके जैसा जोड़ी है ही नहीं, ये दोनों में अंतर है। और ये कब आता है? ये तब आता है जब एडजस्टमेंट दोनों तरफ से 100% होता है। जब एडजस्टमेंट दोनों तरफ से 100%, एक तरफा एडजस्टमेंट से कभी कोई टिकता नहीं है कोई भी। दोनों तरफ से जब एडजस्टमेंट 100% हो तब वो चीज टिकता है। तो हमें भी उनके ऊपर विश्वास, भरोसा सब कुछ है, लेकिन हम विधि माफिक, नियम माफिक चलते हैं। अगर चलते हैं तो उसका फल मिलेगा ही, अगर नहीं चलते, ये अगर मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, हम सुबह उठने से लेके और शाम को सोते वक्त, सोना तक आपके हाथ में, जब आप सो जाते हैं उसके बाद आपके हाथ में नहीं होता। ये बिल्कुल इसके अंदर जितने भी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप कल समझ जाए। मैं कल एक गाड़ी खरीदने गया। जब गाड़ी खरीदने गया, वहां पे मुझे केक काटने के लिए दिया गया और उस केक के ऊपर कैंडल लगा हुआ था। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप कैंडल को बुता दीजिए और केक काटिए सर, आपके लिए केक हमने लाया। कल शाम 7 बजे की बात है। मैं कार की चाबी ले रहा था, डिलीवरी दे रहा था। ऑन दैट वेरी टाइम दे गिव मी ए चॉकलेट पैकेट्स एंड केक। तो उन्होंने बोला इस मोमबत्ती को बुझा दीजिए और आप केक काटिए। मैंने उनमें से कोई ठाकुर जी के दीक्षित लोग नहीं है। मैंने उनको शुद्ध रूप से बोला कि देखिए, हम सनातन हिंदू लोग कभी भी कोई चीज को बुता के या बुझा के या निभा के नहीं करते। हमारे जिंदगी में हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए, हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए। मैं अगर बोलूंगा और मैं अगर करूंगा नहीं तो होगा नहीं। जबकि वहां पे एक अगर मैं मोमबत्ती बुझा देता जहाँ पे ठाकुर जी का कोई लोक नहीं है, जहाँ पे दूर दूर तक किसी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पे मुझे कोई देख भी नहीं रहा है, जहाँ पे कोई मेरा सुन भी नहीं रहा है, एटलीस्ट जो मैं बोलता हूँ वहां आसपास कोई सत्संग ही नहीं है, तो मैं तो छुपा के बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन किससे छुपा रहा हूं? अपने अंतरात्मा से छुपा सकता हूं। ये मन की खुराक, आपके मन में बहुत सारे चीज है, वो सत्संग में जाने के बाद अगर उस खुराक को हम नहीं बुता सकते तो बेकार है जाना। एक जगह ना विज्ञान का क्लास चल रहा था स्कूल में विज्ञान का क्लास चल रहा है और मास्टर ने आके बोला, हाँ सारे आ गए स्टूडेंट लोग? तो सब कहते हैं हाँ सर आ गए, और हकीकत में सब आए हुए थे। तो मास्टर जी ने बोला, अच्छा भाई एक बात बताओ कि आप लोग ईश्वर में विश्वास करते हो? तो स्टूडेंट लोग ने बोला हाँ सर करते हैं।
तब मास्टर ने बोला अच्छा बताओ, इस जग में जो भी सृष्टि है वो मानुष का कर्म द्वारा ही होता है। हाँ सर होता है। अगर वो अच्छा काम करते हैं हम अच्छा कहते हैं, अगर वो खराब कहते हैं तो हम खराब कहते हैं। हकीकत है, हाँ या ना? हाँ अमरीश दा सही बोल रहा हूँ? मतलब वो मास्टर जी सही बोल रहे थे कि अगर वो बंदा अच्छा काम कर रहा है तो हम बोलते हैं हाँ अच्छा, अगर कोई बुरा काम करते हैं तो हम कहते हैं हाँ बुरा, है ना तरुण दा? ऐसा ही कहते हैं ना? तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अच्छा काम को जब हम अच्छा कहते हैं तो हम कहते हैं हाँ अच्छा, और कोई बुरा होता है तो हम कहते हैं हाँ बुरा। अब ये अच्छा भी जिसका सृष्टि है, बुरा भी उसका सृष्टि है। मास्टर अब स्टूडेंट को बोल रहे हैं जो अच्छा काम करते हैं और बुरा काम करते हैं, तो अच्छा भी उनका सृष्टि है, बुरा भी उनका सृष्टि है। तो ये अच्छा काम जिसने किया और बुरा काम जिसने किया वो सारे भगवान का सृष्टि। प्रॉपर लॉजिक माथुरदा, प्रॉपर लॉजिक है। तब वो मास्टर बोल रहा है इसका मतलब कि अच्छा भी भगवान का सृष्टि है और बुरा भी भगवान का सृष्टि है। तो भगवान फिर बुरा का सृष्टि क्यों किए? अच्छा ही कर देते, सब अच्छा ही सृष्टि कर देते, बुरा का सृष्टि नहीं होता। अब स्टूडेंट लोग पिन ड्रॉप साइलेंट, क्योंकि पहले सब ने बोला था हम भगवान में विश्वास करते हैं और मास्टर ने लॉजिकली प्रूव कर दिया क्या कि अच्छा अगर भगवान का सृष्टि होता है, बुरा भी भगवान का सृष्टि होता है। अब वहां पे भी धीरज जा जैसे कोई ठाकुर जी का लोक था, कोई ठाकुर जी का शिष्य थे, उन्होंने सर को घुमा के पूछा कि सर दुनिया में अंधेरा बोल के कोई चीज है? तो मास्टर जी ने बोला या यस बेटा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी, यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप साइंस का स्टूडेंट हो, आपको नहीं मालूम अंधेरा है क्या नहीं है? कहते हाँ सर मैं तो खुद बोल रहा हूं अंधेरा है, लेकिन अंधेरा क्यों है? अंधेरा इसलिए है कि वहां पे आलो या लाइट का अनुपस्थित है। राइट, दैट वेरी स्टूडेंट इज राइट धीरज दा, कि वहां पे अंधेरा इसलिए है कि वहां पे उजाला का अनुपस्थित है, और उजाला का अनुपस्थित है इसलिए वहां पे अंधेरा है। हाँ या ना? तो जहां पे लाइट का अस्तित्व नहीं है वहां पे अंधेरा है। हम लोग जितने भी साइंस का स्टूडेंट, जो भी बड़े बड़े प्रोफेसर विज्ञानी रिसर्च कर रहे हैं, वो अंधेरा को लिए रिसर्च करता है या आलो के लिए रिसर्च करता है? किसके ऊपर रिसर्च चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में? आलो के ऊपर, लाइट के ऊपर रिसर्च होता है, अंधेरा के ऊपर रिसर्च नहीं। लाइट का वेग कितना है, लाइट का तरंग कितना है, लाइट कितना देर में धरती तक पहुंचता है, लाइट का कंपन क्या है, इन सब के ऊपर रिसर्च हो चुका है, किताब लिख चुका है, छप चुका है और भी चल रहा है। तब वो मास्टर जी ने बोला हाँ बेटा सही है। अब वो लड़का कहते हैं सर शीतल बोल के कोई चीज है, ठंड बोल के कोई चीज है? तो मास्टर ने बोला हाँ भाई ठंड तो है, कोल्ड इज देयर। तब वो स्टूडेंट कहता है सर कोल्ड कब है? कहता है कोल्ड कोल्ड है, ठंडा ठंडा है, जैसे गर्म है वैसे ठंडा है। तब वो स्टूडेंट कहते हैं सर कोल्ड वहां पे है, ठंडा वहां पे है जहां पे उष्णता मतलब गर्म चीज की अनुपस्थित है, उपस्थिति नहीं है किसी गर्म चीज का, इसलिए वो जगह ठंड है, अन्यथा वो गर्म ही होता या नेचुरल होता, बैलेंस्ड होता। ये जो अस्तित्व, लाइट का अस्तित्व, उष्ण का अस्तित्व नहीं है बोल के
कहीं पे अंधेरा है, कहीं पे शीतलता है। बिल्कुल उसी तरह में हृदय में सत्य या भगवान का अनुपस्थित अगर होता है, वहीं पे खराब का बसवास होता है सर। नहीं तो दुनिया में सभी चीज अच्छा है, सभी मन अच्छा। उन्होंने जब गॉड इज रियल, हिज क्रिएशन इज रियल, हाउ कैन दैट वेरी थिंग्स विल बी बैड? खराब हो ही नहीं है, अस्तित्व का अनुपस्थित होता है। दुर्योधन या रावण के पास अर्थ, संपद, ज्ञान, एजुकेशन, किसी चीज का कमी नहीं था। अगर कमी था तो इष्ट हारा थे। ये जो इष्ट का अनुपस्थित, और इष्ट का अनुपस्थित का मतलब मैं ये समझता हूं, हम सबके घर में ठाकुर जी का फोटो है, हम सबके घर में ठाकुर जी का आसन है, हम सबके दीवार में उनका फोटो टांगा हुआ है, मंदिर में है, मंदिर में है, गिरजा में है, मस्जिद में है। लेकिन अगर नहीं है तो मन में नहीं है। जिस दिन उस फोटो का थोड़ा सा भी बात अपना मन में उतार लेंगे, उस दिन से हम लोग ये जितना भी परिस्थिति का ऊपर, अनुपस्थिति के ऊपर चल के एक दूर जाने का कोशिश कर रहे हैं, इस दूर से अभाव घट जाएगा, इस दूर से इष्टहारा नहीं होंगे। बहुत लोगों की दीक्षा हुई, बहुत लोगों के दीक्षा होने के बाद उनके साथ संपर्क टूट गया, वो लोग इष्टविधि छोड़ चुके हैं, वो लोग भूल चुके हैं। अब बड़ दादा का आशीर्वाद क्या हुआ कि उनको पुनराय अपने स्थान पे ले आओ। क्यों ले आओ? सत्संग का पैसा का अभाव हो गया, ठाकुर जी का मंदिर ठीक से नहीं चल रहा है? जी नहीं। इसका कारण है आप जो चश्मा पहने हुए, आप जो बाल काटते हैं, आप जो कुर्ता पहनते हैं, आप जो चावल खाते हैं, आप जो रोटी खाते हैं, आप जो वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, वो आप नहीं बनाते हैं, कोई और बनाते हैं। और आप दूसरे के ऊपर निर्भरशील है इन सारे चीजों पे। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से आप जो काम करते उसके लिए समाज आपके ऊपर निर्भरशील है। जब हम एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है, तब हम उनको अगर इस पथ में, इस रथ में सवारी नहीं करवाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पैर के नीचे क्या क्या हो रहा है और आप किस किस चीज में फंसे पड़े हुए हैं। आप चाह के भी अपने आप को वो इष्टहारा नहीं कर पाएंगे। इतना कुछ होने के बाद, मैं अभी 1 महीना पहले देवघर गया था। आचार्य देव एक कहानी सुना रहे थे। एक बंदा था मुजफ्फरनगर का, अभी भी है, नारायण दा बोल। दोनों चाय के दुकान में खड़े होके चाय और चॉप खा रहा था, नारायण दा और उनके ही गांव के, उनके ही मंदिर के आसपास के एक बंदा। और उन्होंने देखा नहीं नारायण दा वहां पे है, लेकिन नारायण दा देखा था वो यहाँ पे। अब वो बंदा वहीं पे चप और चाय खा रहा था, पी रहा था, और पूरा समय नारायण दा के बारे में अन सब गप सब उल्टा सीधा बात बोले जा रहे, जितना हो सके उन्होंने बोला। अब जब उनका सारे बात खत्म हुआ तो नारायण दा जाके उन बंदे के पास गया और बोला, क्या दादा मन हल्का हुआ? आइए दोनों मिलके एक कप चाय पीते। अब इस बात को दादा कह रहे हैं आचार्य देव,
कि अगर तुम्हारे बारे में कोई ऐसा अपशब्द बात बोले, क्या तुम उसको क्षमा कर सकते हो? हमारे बहुत सोचने का दिन खत्म हो चुका है, बहुत सोचने का दिन खत्म हो चुका है, बहुत सारे करने का दिन आ चुका है। जिस दुनिया में, जिस एग्जिस्टेंस के साथ हम लोग रह रहे हैं, ही इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट, ही इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑल दैट रिस्पॉन्ड। जब क्रिएशन है और वो क्रिएशन का जब कोई क्रिएटर है और उस क्रिएटर जब रियल है, तो एवरीथिंग इज रियल एंड प्रैक्टिकल। वो रियल एंड प्रैक्टिकल में आज हम सिर्फ बोलने बोलने पे रह गए और बोलते बोलते बागबाची हो चुके हैं। कर्म में वो बिल्कुल प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा है। अब कर्म करने का दिन है, अब लड़ने का दिन है, अब बढ़ने का दिन है, अब झरने का दिन है, अब निकलने का दिन है। हम उपस्थित सभी दादा और माताएं उनके शिष्य ठाकुर के चरण में सुदीर्घ सुआयु जीवन प्रार्थना करते हैं और उनके साथ ही यही आप लोगों से विनिम्र निवेदन करते हैं कि आइए, जो हो चुका है, जो गुजर गए वो हो गए। बहुत टाइम है, अभी भी बहुत समय पड़ा हुआ है। चाहे 2 ही आदमी हो, चाहे 10 ही हो, चाहे अपने इलाका का 100 आदमी हो, सबको लेके, सबको मिल के वही उनके बुराई को छोड़ के उनको लेके इष्ट के पथ में और उनके बात को अपना जिंदगी में आजमा के उसी तरह चल के उनके जिंदगी में आजमाने का कोशिश करें। पुनराय सबका सुदीर्घ जीवन, इष्ट प्राण जीवन प्रार्थना करता हूँ। कहीं मेरे बात पे भूल हो जाए, अपने गुण से क्षमा कीजिएगा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। श्रद्धेय स्वपति ऋत्विक वेदवानी गांगुली दा। देवघर में तो बहुत बार मुलाकात हुआ दादा से, और आज ऑनलाइन में दादा का साक्षात्कार हुआ। दादा इस प्रसंग के बारे में बोले और इतनी महत्वपूर्ण बातें बोले, एकदम न्यू वाली बातें बोले दादा, कि किस तरह से ठाकुर के पथ पर सत्यानुसरण में कौन कौन से पॉइंट है। और दादा जब बोल रहे थे तो हम लोग का मन और निगाह मस्तिष्क पूरा क्रियान्वयन हो गया था, सत्यानुसरण की तरफ चला गया था कि वास्तव में भक्ति निष्ठा और विश्वास पे ही ठाकुर जी का ज्यादातर फोकस है सत्यानुसरण में। और अभी जैसे दादा बोले कि जैसे उजाला नहीं रहने के अनुपस्थिति में ही अंधकार होता है, उसी तरह से जब ठाकुर जी हम लोग के मन मस्तिष्क में नहीं रहते हैं, तभी हम लोग के द्वारा कुकार्य या अभद्र आचरण या जो कुछ भी हो सकती है वो हो जाती है। और इस चीज का हमें ख्याल होकर के ही चलना होगा, जिससे हम अपने चलन को, बलन को, पथ को प्रशस्त कर पाए, मालिक के पथ को हम लोग मालिक को लेकर के चल पाए, मन में लेकर के। छवि में मंदिर में तो हम लोग रखते हैं खूब सुंदर से सजा करके, किंतु मन में यदि हम लोग लेकर के चले तो ये हो सकता है कि हम लोग ठाकुर का सच्चे से कर्मी बन पाए। तो दादा का मैं सुस्वास्थ्य मंगल के लिए परम पिता के रातों चरण में एकांत प्रार्थना करता हूँ। दादा इसी तरह से बीच बीच में हम सबको आए और मार्गदर्शन करें। और मैं चाहूंगा कि दादा श्रद्धेय अमरीश अग्रवाल दा जय राधे राधे संपन्न करें। उसके बाद हम लोग ध्वनि दादा जय गुरु गांगुली दा, जय गुरु। ध्वनि भी दे दीजिएगा, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे।
छाड़ो रे मान कपट चतुरी बदन बोलो हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवेरो मूल धर्म धर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छाड़ो रे मान भवेरो आशा अजपाना में करूरी निशा राधे गोविंद नाम ते बदने लाइए नायन मेरे सदा हंस रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरी जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छाड़ो रे मान कपट चतुरी बदन बोलो हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवेरो मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छाड़ो रे मान भवेरो आशा अजपाना में करूरी निशा राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम के बदने लाइए नायन मेरे सदा भसुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय परम पूज्य पास श्री श्री बौड़दा की जय परम पूज्य पास श्री श्री बौड़दा की जय परम पूज्य पास श्री श्री बौड़दा की जय परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितरं वंदे आद्य पितृं वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं पृष्ठदैवतं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं
वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय। जय गुरु दादा, जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। खूब जय सुंदर जय 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 गुरु पूनम माँ, जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। अभी मैं माइक श्रद्धेय अमरीश अग्रवाल दा को सौंपता हूँ कि दादा आगे का कार्रवाई करें। जय गुरु श्रद्धेय अमरीश अग्रवाल दा, जय गुरु। अग्रवाल दा जय गुरु बोलिए। जय गुरु श्रद्धेय धीरज केसरी दा, जय गुरु। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर्वप्रथम कि इतने आज का ये प्रातःकालीन पवित्र निष्ठापूर्ण सत्संग जो वीरगंज नेपाल की पवित्र भूमि से विश्व परिवार सत्संग में आयोजित हुआ, इस सत्संग की परिचालना बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर शब्दों के साथ और समय के अंदर इसका आपने समापन किया। इसके लिए पूरे विश्व परिवार सत्संग की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और आपके पूरे परिवार की उत्तरोत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन इष्टमय चलन के लिए प्रियप्रम के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। जो आज हमारे श्रद्धेय बेदवानी गांगुली दा दिल्ली की पवित्र भूमि से हम लोग के बीच जो बात रखे हैं कि जीवन में अगर जीवन में इष्ट नहीं है और इष्ट है तो वो आज आपके अंदर मुझे देखने को मिला। इसी तरह से आप अपने प्रभु को लेकर के हम सब लोग अपने जीवन में चलें, क्योंकि बगैर इष्ट के हम लोग का जीवन बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जीरो पर है, जिसको आज हमारे श्रद्धेय बेदवानी गांगुली दा ने हम लोग के बीच बहुत सुंदर तरीके से रखा। तो मैं उनके और उनके भी पूरे परिवार की उत्तरोत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन इष्टमय चलन के लिए प्रियप्रम के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ कि वो हम लोग के बीच में इतने व्यस्ततम होते हुए स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है, लेकिन यही मैं उनके अंदर निष्ठा है, यही प्रभु के प्रति निष्ठा है कि वो एक बार मैंने उनसे दादा से निवेदन किया और दादा ने कहा कि नहीं दादा ठीक है, जहाँ प्रभु की बात है तो मैं बिल्कुल है जो कह वो प्रभु नहीं मेरा काम है दादा। और इस चीज को समझ के वो हम लोग के बीच उपस्थित रहे और हम लोग को बहुत सुंदर है जो प्रभु की जो बात थी कि किस तरह से हम लोग को प्रभु को लेके चलना है। और जैसा कि हमारे धीरज केसरी दा भी उनकी बात को बोले कि भक्ति निष्ठा विश्वास, इस तीन चीज पर हमारे ठाकुर जी ने बहुत जोर दिया है, इस पे बहुत वाणियां भी दी हैं, बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिला। तो एक बार फिर पूरे विश्व परिवार सत्संग की तरफ से उनका अभिनंदन वंदन करते हुए उनको मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। और इसके बाद आज के सत्संग के समापन के लिए हमारे विश्व परिवार सत्संग के महासंचालक पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% ऋत्विक श्रद्धेय अशोक चौरसिया दा को मैं सादर आमंत्रित करूंगा। अगर दादा हैं तो हम लोग के बीच आके 2 शब्द बोलेंगे। श्रद्धेय अशोक चौरसिया दा, दादा जय गुरु। दादा का संकेत नहीं मिला तो मैं चल रहा हूँ अवध नगरी, लखनऊ की पवित्र भूमि अवध नगरी में, और वहां से हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% ऋत्विक डॉक्टर स्वरूप माथुर दा को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि दादा आइए और आकर के आज हम लोग के बीच हमारे श्रद्धेय बेदवानी गांगुली दा इतनी अच्छी प्रभु की बात कहे तो 2 शब्द रखेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर स्वरूप माथुर दा, दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आवाज नहीं आ रही दादा। हाँ माइक, हाँ जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आज का निष्ठापूर्ण सत्संग ऑनलाइन, इसमें हम लोग ये प्रतीक्षा इंतजार करते हैं कि पल्लव सरकार दा आए और कुछ अपनी बातें हम लोग को बताएं, लेकिन हो सकता है किसी व्यस्तता के कारण ना आए हों। तो हमारे वेद वाणी गांगुली दा इतने निष्ठा और भक्त हैं, निष्ठापूर्ण भक्त हैं कि उनको बहुत दिन के बाद सुनकर के हमको बहुत अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो
बोलते हैं, जो भी जिस भाव से बोलते हैं, उसमें बड़ा भावपूर्ण होता है, और उसमें जो उदाहरण देते हैं वो उदाहरण भी बड़ा सटीक होता है, मतलब बिल्कुल फिट बैठता है। तो भक्ति, निष्ठा और विश्वास, इस पर उन्होंने बोला है। इसके पहले मैं श्री धीरज केसरी दा को, पूजनीय हमारे अमरीश दा को, हमारे अशोक चौरसिया दा को, और जिन लोगों ने सत्यानुसरण के पाठ किए हैं, नारी नीति का पाठ किया है, स्वास्थ्य संस्कार का पाठ किया है, उन सबों को मैं बहुत ही तहे दिल से, हृदय से उनका जो है वो आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही जो हमारे माँ लोगों ने भजन किया, जिसमें निवेदिता माँ है, मीता माँ है, पूनम माँ है, इन लोगों का जो भजन हुआ बड़ा ही सुंदर भावपूर्ण भजन था और अर्थपूर्ण भी भजन था। इसमें बड़ा गूढ़ अर्थ था, ठाकुर जी के प्रति भक्ति भरी हुई थी और कूट कूट के भरा हुआ था। आज के जो प्रमुख वक्ता थे श्री बेदबानी गांगुली दा, ये बचपने से सत्संग में रहते हैं, और हम लोग, हमारी तो कम से कम 2500 ज्यादा उनसे हमारा संपर्क है। और मैं इनको इस बात के लिए बधाई देता हूं पहले तो, कि उन्होंने एक नया एक वाहन खरीदा है, और उस वाहन के लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूं कि ये बहुत अच्छी तरह से उसको रखेंगे और चलाएंगे और ठाकुर के काम में ले जाएंगे। हमारे वेद गांगुली दा, बनी गांगुली दा ने 3 चीज के बारे में बहुत जोर दिया है कि ठाकुर जी कहते थे कि भक्ति, निष्ठा और विश्वास। जिसमें विश्वास जो है, विश्वास तो ऐसा होता है ना कि जो भाव किसी भी विरुद्ध भाव के द्वारा आहत या अभिभूत नहीं होता है, वही विश्वास है। ये सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने बोला है। अब देखिए, बहुत सा अभी हम लोग संक्रमण काल से गुजरे हैं, बहुत सी कठिनाई दौर में हम किसी चीज पर हम लोग शीघ्र विश्वास नहीं करते जब तक कि उसका सत्यापन नहीं हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन इससे कुछ भिन्न होता है। जो व्यक्ति धर्म के मूल स्वरूप को समझ लेता है, जो व्यक्ति धर्म के मूल स्वरूप को समझ लेता है और अपने जीवन में गुरु या इष्ट को धारण कर उसका अनुसरण कर प्रारंभ कर देता है, उसका शरीर और मन एक प्रायोगिक यंत्र की तरह काम करता है। सद्गुरु का मंत्र जब दीक्षा के माध्यम से हमारे तन और मन दोनों पर ही प्रवेश कर जाता है, तो भक्त उस परम सत्य को धीरे धीरे बोध करने लगता है, उसको पता चलने लगता है। श्री ठाकुर जी से युक्त होकर आज अनेकों भक्त उस परम सत्य जो भक्ति, निष्ठा और विश्वास कायम रखता है एवं उनकी अंतरात्मा में बोध करता है, यही हमारे स्फूर्ति का एक कारण है। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने भी सत्यानुसरण में एक पंक्ति है, अनुभूति द्वारा जो जाना जाए वही ज्ञान है, और जो मनुष्य को कारणमुखी बनाता है और ज्ञान प्रहेलिका को ध्वंस कर भक्त को प्रकृति चक्षु प्रदान करता है। यह प्रकृति चक्षु जो है वो हमको ज्ञान देता है, ये विज्ञान से नहीं आता है, ये अनुभूति के द्वारा हमको प्राप्त होता है। अनुभूति के द्वारा जो कुछ भी हमको
प्राप्त होता है वही ज्ञान है और जो मनुष्य का कारणमुखी होता है। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से प्रकरण हैं हमारे दैनंदिन जीवन में, जिसमें कि नकारात्मकताएं हैं, सकारात्मकताएं हैं। ये सब हमको जो है, जो हमारी अनुभूति होती है, अगर नहीं भी वो सामने आकर के हमारे जीवन में एक प्रैक्टिकल रूप में आती है, लेकिन उससे हमको अंदर से अनुभूति से ज्ञान हो जाता है। मेरे भी जीवन में ऐसी बहुत सी अनुभूतियां हुई हैं। मैं श्री बौरदा जी के पास जब बैठता था तो बहुत सी बातें सोचते थे और मन करता था उनसे पूछते हैं, लेकिन पूछने के पहले ही ऐसी अनुभूति आती थी कि मुझको उसका उत्तर मिल जाता था। उस समय हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लगता था। तो श्री वेद वाणी दान है, ये बड़ा अच्छा जो है आज इन्होंने ये टॉपिक लेकर के हम लोगों को समझाया है और बताया है। और उनका ये बताना और समझाना जो है ये बहुत ही समतुल्य है, बहुत ही बैलेंस्ड होता है, जो कि श्री ठाकुर जी की पंच नीति और जो ये पंचनीति ही एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण है। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द फैक्ट इज कॉल्ड साइंस, क्योंकि साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। और ये पंचनीति तो हम जानते हैं, यजन है, याजन है, इष्टवृत्ति है, स्वस्तिनी है और सदाचार। तो ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो हमको श्री ठाकुर जी से युक्त होकर के, अपने इष्ट से या अपने गुरु से युक्त होकर के ही मिलता है। तो ये जो आलोक जो हमको प्राप्त होता है, जो हमको विज्ञान से भी नहीं प्राप्त हो सकता है। मैं स्वयं एक वैज्ञानिक हूं, लेकिन मुझको जो चीज इन पंच नीतियों से प्राप्त हुआ है, ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड साइंस, और यही साइंस है। साइंस भी इसी पर आधारित है। इसके साथ ही मैं अपना विश्लेषण का जो वक्तव्य है वो समाप्त करता हूं, और वेद वाणी को आज बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हम लोग के बीच आए और उन्होंने हम लोगों को इतना सुंदर एक आलोच्य विषय को सामने रख करके उसकी आलोचना किए। और उस आलोचना से भी हम लोग को बहुत सा ज्ञान होता है। बहुत सा ज्ञान ऐसा होता है कि आदमी को नॉलेज, तो देखिए ऐसा है कि आप देयर इज नेवर एंड ऑफ द नॉलेज। तो हमको इतना अच्छा इन्होंने ज्ञान दिया आज और विज्ञान दिया कि मैं इसके लिए बहुत बहुत उनको उनका आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। हम लोग के बीच हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर एस.के. माथुरदा, बहुत सुंदर बात। इस 1.5 घंटे के सत्संग को दादा ने 7-8 मिनट के अंदर बहुत सुंदर तरीके से इसका है जो डिस्कशन किया कि हम लोग के बीच आज श्रद्धेय वेद वाणी गांगुली दा क्या कहे, और पंचनीति जो ठाकुर जी ने दिया है उसको भी बताया कि वो नेचर, उसको प्राकृतिक चीज, और प्राकृतिक ही है जो वही साइंस है, उसको उससे जोड़ा उन्होंने। तो ज्ञान से ही विज्ञान हुआ है और ज्ञान से ही ज्ञान हुआ है। इस बात को दादा ने भी बहुत सुंदर तरीके से हम लोग के बीच है जो इसका डिस्कशन किया है। और मेरे अंदर की भावना थी कि आज दादा को जरूर बुलाऊंगा, 2 शब्द सुनूंगा, क्योंकि हम लोग के बीच है जो माथुरदा डेली तो नहीं रहते हैं, लेकिन यह है कि मंगलवार को तो रहते ही रहते हैं, मंगलवार भी रहते हैं, बृहस्पतिवार भी। तो लेकिन मैं एक चीज का आग्रह करता हूँ, आप लोग भी करते रहते हैं, कि जब भी कोई आलोचना करता हो या जो भजन करता हो, उतने समय के लिए अपना वीडियो जरूर खोल दे, ताकि ये हम लोग जो है, ये एक श्रवण का सत्संग नहीं है, ये हम लोगों का बिल्कुल जैसे सामने बैठ करके हम आपस में बात कर रहे हैं। और अगर आप खुद देखिए कि अगर आप सामने बैठे हो और बीच में पर्दा पड़ा हुआ हो तो क्या फायदा। तो इसलिए मैं आप लोगों सबसे
आग्रह करता हूं कि जब भी कोई भजन करे, चाहे 2 मिनट के लिए करे, 3 मिनट के लिए करे, चाहे आलोचना करे, तो अपना वीडियो जरूर खोल दे। इसका मैं ठीक आग्रह बात